Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, I will be discussing very important aspect, that is promotion prospects in banking in coming years. Banking is a area which provides lot of promotions to its employees. And the promotion starts right from the lowest cadre to highest cadre. That means a PN can become clerk, clerk can become officer, and so on. Now, here there are some myths and there are some realities. We will discuss both the things in this video. Last 10 years were the golden phase as far as promotions in banking is concerned. Why? Lot of retirements were happening in banking, and the banks adopted a policy of reduction of staff during last 10 years. So what they did, most of the banks adopted the 60% replacement policy, and some banks like State Bank adopted 80% replacement policy. 60% 80% replacement policy means, say if 2000 people are retiring, then 1200 will be added in the year, so that there is an automatic reduction of 800 people in a year. And this is the model adopted by almost all public sector banks, because they were adopting the technology also, and which is allowing them to reduce cost on staff. So what they did is, due to retirements, the positions were getting vacant, and they were offering these higher positions to their existing employees by way of promotion. That means, say someone is scale 1 in the bank, he becomes eligible for scale 2, say after 3 years, but as number of adequate scale 1 officers are not available, number of banks reduced the eligibility by 6 months or 1 year, and they promoted scale 1 to scale 2 even with a service of 2.5 years or 2 years. Same thing happened from scale 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, and so on, and even from clerk to officer. So what happened is, the banking industry seen fast promotion scenario in last 10 years. And now some of the candidates, those are joining now, they are taking these examples and are thinking that the same speed of promotion will continue on future. This is a wrong assumption, because promotion prospects are directly related to number of people going to retire in a particular year, and how many these posts will get vacant during these years. So what is the scenario in future? From 2023 onwards till 2030, the number of retirements will go down year after year in every bank, and the number may vary from bank to bank. That means, that indicates that the number of people, those will be getting promotion from 2023 to 2030 will be lesser. Or in other words, by the speed the people are getting promotion today, the same speed may not be retained post 2023. And that's why, if you have to decide about your future prospects, always compare what you are having as option today, instead of placing option what you are having today and what you are likely to get after 3 years. That will be based on wrong assumptions, and you may regret later on. So say you are selected as clerk in some organization, you are selected as officer in another organization, and if you are comparing these two positions, keeping in view that in this organization I will become officer after 3 years, you are calculating on wrong postulates. After 3 years,
whether you will get the promotion or not get the promotion is a question mark. So always comparison must be done. What are the options available today? Whether you should become officer today, or you should become clerk today, or you should become manager today. This decision you have to take. So how to get promotion? What are the processes of promotion? That we will cover tomorrow. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं बैंकिंग में, इस विषय पर हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न है. पिछले 10 सालों के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत फास्ट प्रमोशंस हुई है. उसका कारण क्या है कि पिछले 10 सालों में बहुत अधिक रिटायरमेंट हुई है और सब बैंकों ने अपना स्टाफ कट किया. तो उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की 60% रिप्लेसमेंट या 80% रिप्लेसमेंट, जिसका अर्थ ये होता है कि अगर मान लीजिए 2000 आदमी रिटायर हो रहे हैं तो हम नए 1200 भर्ती करेंगे और 800 लोग ऑटोमेटिकली कम हो गए. तो जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी वो 60% और 80% मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने अडॉप्ट की. स्टेट बैंक यूजुअली 80% पॉलिसी अडॉप्ट करता है, अदर बैंक 60% पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं. उससे क्या हुआ कि जो भी पोस्टें खाली होती गई हायर पोजीशन पे, वो जो इंटरनल एम्प्लॉइज थे उन्हीं से भर्ती चली गई, क्योंकि आप न्यू इंटेक ले नहीं रहे. तो जो भी पोजीशन हायर रैंक पे खाली हुई वो अवेलेबल हो गई जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, और इसलिए इन एम्प्लॉइज को फास्ट प्रमोशन का मौका मिल गया. मान लीजिए एक बैंक में स्केल 1 से स्केल 2 बनने के लिए 3 साल की एलिजिबिलिटी है, पर 3 साल वाले लोग ही नहीं है उतने कि वो स्केल 2 की पोस्टें भर सकें, क्योंकि रिक्रूटमेंट कम हो रही है तो फ्रेश स्टफ बहुत कम है. तो क्योंकि फ्रेश स्टफ कम है तो उन्होंने क्या किया, उसको रिलैक्स कर दिया, 2.5 साल में बना दिया, 2 साल में बना दिया, और वो 2 साल में प्रमोट हो गया, 3 साल में प्रमोट हो गया. और वो हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया कि इस बैंक में तो बहुत जल्दी प्रमोशन हुई थी. इसी तरह वो स्केल 3 में भी जल्दी पहुंच गया, स्केल 4 में भी जल्दी पहुंच गया. तो जो आज एम्प्लॉई ज्वाइन कर रहा है उसके लिए जो पिछले 10 सालों में हुआ वो एक एग्जाम्पल बन गया. पर क्या ये एग्जाम्पल कंटिन्यू रहेगा? नहीं, क्योंकि अब क्या हुआ कि ये जो पोस्टें थी किन्होंने ऑक्युपाई कर ली? जो यंगर जनरेशन है, जो अब जल्दी रिटायर होने वाले नहीं है. तो जो 2023 के बाद का यदि हम सिनेरियो देखते हैं 2030 तक, उन वर्षों में बैंकों में बहुत कम रिटायरमेंट होगी. अब जब कम रिटायरमेंट होगी तो क्या होगा, ये जो पोस्टें हैं हायर लेवल की जो पोस्टें हैं वो कम वैकेंट होंगी. जब कम वैकेंट होंगी तो अधिक लोग इन पोस्टों के लिए फाइट करेंगे, और उसको वार्ड ऑफ करने के लिए बैंक क्या करेगा, या तो एलिजिबिलिटी को बढ़ाएगा. अगर आज किसी पोस्ट के लिए वो 2 साल के कैंडिडेट को एलिजिबल कर रहे हैं 2 साल एक्सपीरियंस के, तो हो सकता है आने वाले पीरियड में उसको वो 3 इयर्स कर दे और आने वाले साल में उसको 4 इयर्स कर दे. क्योंकि यदि आप पास्ट में देखेंगे तो पिछले 30 साल के अंदर हमेशा ये एडजस्टमेंट होती चली आ रही है. कभी एलिजिबिलिटी बढ़ती है, कभी एलिजिबिलिटी घटती है, कभी एलिजिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि वो जो सीनियर लोग हैं उनको भी कुछ एडवांटेज देना पड़ता है. ऐसा नहीं हो सकता कि सीनियर को निगलेक्ट करके जूनियर को प्रमोट कर दिया जाए. तो जब हायर लेवल पे पोजीशन घटती जाती है तो सीनियर व्यक्ति को मौका देने के लिए लेंथ ऑफ सर्विस एलिजिबिलिटी को बढ़ाया जाता है, और जब अवेलेबल नहीं होते कैंडिडेट तो एलिजिबिलिटी को घटाया जाता है. तो इसलिए आने वाले वर्षों में क्या होगा कि अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 3 साल पुराना क्लर्क इस बैंक में अफसर हो गया था, ये कोई एग्जांपल नहीं है कि अब जो क्लर्क ज्वाइन कर रहा है वो 3 साल के बाद अफसर बन जाएगा. ये कोई एग्जांपल नहीं है, और इस तरह की कैलकुलेशन मत करना. मेरा मानना यह है, सही वे ऑफ कैलकुलेशन क्या है कि आज आपके पास क्या पोस्ट है, क्या आप क्लर्क बन रहे हैं या अफसर बन रहे हैं, ये कंपैरिजन करना कि आज अगर मैं आज यहाँ पर क्लर्क ज्वाइन करता हूँ 3 साल बाद अफसर बन जाऊंगा, यहाँ मैं अफसर बन रहा हूँ, मुझे नहीं बनना चाहिए. ये बिल्कुल रॉन्ग कैलकुलेशन है, ये कभी नहीं करनी चाहिए.
क्योंकि आने वाले वर्षों में फिर आप रिपेंट करेंगे, पर प्रमोशन स्लो होगी, ये 100% सही बात है। क्योंकि बैंकिंग का अगर हम पिछले 3 सालों की हिस्ट्री लेके देंगे, 40 साल की हिस्ट्री लेंगे, तो आप पाएंगे ऐसे फेजेस है जब बहुत स्लो प्रमोशंस हुई हैं, ऐसे फेजेस है जब मॉडरेट लेवल पे प्रमोशन हुई है, और ऐसे फेजेस हैं जब फास्ट प्रमोशन हुई है। अब फास्ट प्रमोशन का फेज कुछ सालों के लिए रुक जाएगा, क्योंकि अधिकांश पोस्टों पे यंग लोग बैठ जाएंगे। तो जब तक वो रिटायर नहीं होंगे या क्विट नहीं करेंगे बैंक को, वो पोस्टें नेक्स्ट लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। और ये गतिरोध 2023 से 2030 के बीच पैदा होगा, क्योंकि 1986 से लेकर 1991 के बीच बहुत कम रिक्रूटमेंट है, क्योंकि 1986 के अंदर बैंकिंग में कंप्यूटराइजेशन आया और धीरे धीरे सभी बैंकों ने अपनी रिक्रूटमेंट को उस समय स्लो कर दिया था। 1991 के बाद फिर रिक्रूटमेंट थोड़ी सी बढ़ी, पर उस लेवल पे नहीं आई जो प्री 1986 है। जो पीक रिक्रूटमेंट बैंकिंग के अंदर हुई है वो हुई है 1977 से 1986 तक, और वही लोग रिटायर हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, या होने वाले हैं 1-2 साल के अंदर। और इसीलिए पिछले 10 सालों के अंदर बैंकों के अंदर सीनियर ऑफिसर्स काफ़ी रिटायर हुए और प्रमोशन बहुत फास्ट हुई। प्रमोशन की क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे तैयारी करनी है, ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।